today's humans done enormous things beyond belief, like discovery of electricity by Tesla, discovery of Android by Linus, bullet train by Elon Musk, and missile man APJ Abdul Kalam etc. How is it possible? Today's in this video I will talk about that. दोस्तों, इंसान के दिमाग के अंदर इनॉर्मस पोटेंशियल है और डिफरेंट स्टडीज़ ये प्रूफ कर चुकी है कि हम सिर्फ 10% ही इसके एबिलिटी को यूज़ करते हैं। इसके अंदर इतनी ताकत है कि आप जो भी इमेजिन करेंगे और कंसिस्टेंटली इस पर एक्ट करेंगे तो आपका दिमाग इसको पूरा कर सकता है। इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए, आपको यह फिलॉसफी ठीक से समझ में आ जाएगा कि हाउ इट वर्क्स। एक्चुअली ह्यूमन माइंड ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के जैसा काम करता है। हम अपने विचार और अपने थाट्स को दूसरों तक अपने माइंड के माध्यम से ही ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन इसका एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये है हमारा माइंड का रिसीवर के जैसा काम करना। अगर आप अकेले बैठकर किसी एक चीज़ के बारे में ध्यान से सोचें, उस पर फोकस करें, तो आपके माइंड में अलग अलग टाइप के आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे। इसी को इंट्यूशन कहा जाता है। मीनिंग, जो कुछ भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक तरह का इंट्यूशन है। अगर आपका इंटेंशन, इरादा नेक है तो आपका इंट्यूशन यानी आइडिया भी नेक होगा और आप उस पर एक्ट कर सकते हो। अगर आपका इंटेंशन गलत है तो आपका इंट्यूशन भी गलत होगा और अगर आप इस इंट्यूशन पर एक्ट करेंगे तो आप सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। मीनिंग, एनीथिंग दैट यू वांट टू क्रिएट, फर्स्ट यू हैव टू मेक योर इंटेंशन क्लियरली। व्हाई डू यू वांट टू क्रिएट दिस? इफ़ योर इंटेंशन इज क्लियर and in the interest of whole mankind, then your intuition will be good and you can act upon it. Meaning, you are guided by the universe to take action upon your intuition. Let's try to make it more simpler as I can. My greatest teacher and spiritual master, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, once laying down the tree in calm and peace and hang their sword to the tree. He had sword for their protection and fight in war. So he hang their sword to the tree. Then suddenly his enemy appears and grabbed the sword from the tree and told the prophet, कौन है जो आज आपको हमसे बचाएगा? Now visualize the situation and think. आप एक पीसफुल, चीयरफुल और स्टडी वे में कहीं पर लेटे हैं। अचानक से आपका दुश्मन आप ही के हथियार को लेकर के आपके सामने खड़ा हो जाता है और आपको कहता है कि आज कौन आपको हमसे बचाएगा? Now think this situation and visualize and think how you can reply this. But do you know that the what is actually had happened, and do you know that the how Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had replied to that person, to that enemy? And at that time the Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, said to the enemy only one word, and he said Allah. And then do you know what would happen after that? His enemy get tremor. इनका जो दुश्मन था, जो सामने खड़ा था, वो कांपने लग गया। उसके हाथ से औजार गिरा। फिर उसके बाद प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके तलवार को उठाए और फिर उसी को रिप्लाई दिए कि आज तुमको हमसे कौन बचाएगा? देन दैट पर्सन टोल्ड टू द प्रोफेट दैट यू आर कंपैशनेट, यू आर द ब्लेसिंग्स फॉर द होल ह्यूमन काइंड्स। एंड देन द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेफ्ट हिम, उसको जाने देते हैं और फिर उसको माफ़ कर देते हैं। दैट इज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ द ह्यूमन बींग्स। In fact, my point to this story is, if something instantly act by the people, अगर कुछ भी आप क्विक एक्शन में करते हैं, आप कुछ भी तुरंत करते हैं, तो it is your intuition, जो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करता है। In fact, this is a very high level of intuition, and my point is, it's intuition which makes the man successful in his life, which is used by the humans to manifest their ideas to the world. And world become more and more advanced that you have seen today. So make yourself pure, having abundance mindset and good intention, then you can feel the power of intuition. And I explore many examples of intuition which help the world today to getting more and more advanced. You can watch this and realize and feel this and try to transform yourself and try to make yourself such as good intuitions reflect back to you and your life becomes successful, cheerful and peaceful. टेस्ला के नाम पर 300 पेटेंट थे। वो 9 लैंग्वेजेस बोल सकते थे, जिनके नाम पर टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी भी खोली गई।
आज इतने सालों बाद भी जितनी भी मोटर चल रही है, जितनी भी फैक्ट्री में काम हो रहा है, वो उनकी इन्वेंशन इंडक्शन मोटर की बदौलत ही है। हमारे घर में बिजली भी उन्हीं की डिस्कवरी की वजह से है। अब मेन सवाल आता है कि टेस्ला इतने आउटस्टैंडिंग कैसे थे। टेस्ला की एक सुपर क्वालिटी थी और वो थी उनकी डीप थिंकिंग और उनकी इमेजिनेशन। टेस्ला कहते हैं कि वो पार्क में चलते चलते भी पूरी मशीन इमेजिन कर लेते थे। उसका एक एक पाथ, वो कैसे घूमेगी, उसका डिजाइन कैसा होगा, etc। और एक बार पार्क में चलते चलते उन्होंने एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट सोचा था, जो आजकल के हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता है, जिससे एयर कंडीशन मशीन चल सकती है, और वो था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला अकेले रहना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ग्रेट आइडियाज अकेले रहने से ही आते हैं। मैक और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम में से मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन लिनक्स के बारे में काफी कम लोग जानते हैं। लिनक्स बहुत कंप्यूटर्स में तो चलता ही है, लेकिन जितने भी एंड्रॉइड डिवाइस हैं वो लिनक्स पर ही चलते हैं। और लिनक्स सॉफ्टवेयर को बनाने वाले इंसान का नाम है लाइनस टॉर्वाल्ड्स। इनके सॉफ्टवेयर की वजह से गूगल और बाकी कंपनीज ने $billion बनाए। और अगर मैं आपसे कहूँ कि लिनक्स का हेडक्वार्टर इमेजिन करो कि वो कितना बड़ा होगा, तो जरूर आप इमेजिन कर रहे होंगे कि ये एक आलीशान बड़ी ऑफिस बिल्डिंग होगी। लेकिन इनका हेड ऑफिस एक छोटा सा रूम है, जिसमें लाइनस अकेले काम करते हैं। ऑब्वियसली इन्हें अकेले रहना पसंद है और ये मानते हैं कि अकेले रह के ज्यादा बेटर एफिशिएंट वे में काम कर सकते हैं। यानी दुनिया में एंड्रॉइड लाने वाले इंसान को अकेले रहना पसंद है। अगर इलॉन मस्क की बात करें तो उन्होंने अकेले रहकर बहुत सारी बुक्स पढ़ी, और इसलिए जो ये आदमी सोच सकता है वो बहुत ही कम लोग सोच सकते हैं। अगर हम ग्रेट APJ अब्दुल कलाम सर की बात करें तो ऑब्वियसली वो अकेले रहना पसंद करते थे, और वो कहते हैं कि लर्निंग से ही क्रिएटिविटी आती है, क्रिएटिविटी से ही हम आइडियाज के बारे में सोच सकते हैं, थिंकिंग से हमें नॉलेज आती है, और नॉलेज से एक आम आदमी ग्रेट बनता है। Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. माई सेल्फ तफीम सर, फाउंडर ऑफ ISB कम्युनिटी, और मेरा विजन है ओल्ड लर्निंग मॉडल को रिडिफाइन करना। मैं एक मिशन पर हूँ 1 बिलियन स्टूडेंट को हेल्प करने का, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रियलिस्टिक, क्रिएटिव और इंटरैक्टिव तरीके से सीखने में, उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने में। वीडियो के माध्यम से मैं अपने मिशन पॉसिबल लर्निंग मॉडल का आइडिया आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप इस कोर्स को फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, फ्री ई-बुक डाउनलोड कीजिए और VIP फेस ग्रुप में शामिल हो जाइए, जहां आपको मेरे इस कोर्स से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे।